آئیے آپ حضرات کے سامنے ایک مداح رسول موت کے روبرو ہو رہے ہیں، ان کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشہیر میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار بلند آواز درود شریف کے نذرانے عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کی چند اشعار سماعت فرمائیں۔ کہ زندگی یوں تو سب، کیا کہنے، بہت خوب۔ کہ زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر، کہ زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر، اس طرح سے ہو جینا تو کیا بات ہے، زندگی یوں تو سب، کہ زندگی یوں تو سب، کہ زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر، اس طرح سے ہو جینا تو کیا بات ہے، کہ دائیں بغداد ہو، کہ دائیں بغداد ہو، بائیں اجمیر ہو، دائیں بغداد ہو، بائیں اجمیر ہو، اور سامنے ہو مدینہ تو کیا کہ دائیں بغداد ہو، بائیں اجمیر ہو، اور سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، زندگی یوں تو سب۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند شعر سماعت فرمائیں۔ کہ دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دے، کہ دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دے، دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دے، کہ دل میں جمال گنبد دل میں جمال گنبد خضرا بسا کے دے، ارے ان کی بلندیوں کو بھی نظریں جھکا کے دے، ان کی بلندیوں کو بھی نظریں جھکا کے دے، کس درا پہ بھی اچال ہے غارِ ہرا کے دے، کس درا پہ بھی اچال ہے غارِ ہرا کے دے، کس درا پہ بھی اچال
कहते हैं सुभान अल्लाह। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं ऐसी शेर आपके सामने पढ़ रहा हूँ, देखना अगर आपके कलेजों में ठंडक ना पड़ जाए तो कहिएगा, मुलाजा करें। कि पड़ जाएगी कलेज में ठंडक अभी अभी, पड़ जाएगी कलेज में ठंडक अभी अभी, कि पड़ जाएगी कलेज में इश्क़े नबी का नाम तो दिल में बसा के दे, इश्क़े नबी का नाम तो दिल में बसा के दे, इश्क़े नबी का नाम तो दिल में बसा के दे। इश्क़ रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, इश्क़ रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, कि इश्क़ रसूल खुद सुबह में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा केदार सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा केदार सदका नूर का। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे साले से कर लिया जाए। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप लोग? माशाअल्लाह, यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा लगता है कि सब हुजूर ताजुश शरिया वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी के सरों के ऊपर हमेशा हुजूर ताजुश शरिया का साया और करम हमेशा बना रहे। आइए उस सुनाने से कबल एक मरतबा जी लगाकर हदिये दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माल ज़ूद वल करम व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत कहते हैं, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, ईसा अगर दवा न करे, ले रज़ा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। मैं यहाँ से नाते पाक के बिल्कुल आसान लबो लहजे में आपके समातों के हवाले दुआई कलाम जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं आपके समातों के दहलीज तक पहुँचाता हूँ। एक एक शेर बिल्कुल मोहब्बतों के साथ आप समात करें, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह।
میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا. یہ تمام عاشقوں کی تمنا، یہ جب عشق بالکل پروان چڑھ جاتا ہے تب یہ شاعری ہوتی ہے. سنیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، 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 نبی کا نقش کفے پا بنا دیا ہوتا، نبی کا نقش کفے پا بنا دیا ہوتا. اب شعر سنیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ حسن حسین حسن حسین حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، مجھے جو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا. محبتوں کے ساتھ سنے بڑے اچھے اچھے شعر. اب ایک شعر اور آنے والا ہے، سماعت کریں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور جنہوں نے مدینہ دیکھ لیا ہے ان کی آنکھیں چومنے کے قابل ہے، اور جو مدینہ نہیں دیکھے وہ تمنا ضرور دل میں رکھیں کہ یا رسول اللہ کم سے کم آنکھیں عطا کی ہے تو اپنا روضہ بھی دکھا دیجئے، ہے نا. تو یہ تمنا رکھیں. اگر تمنا دل میں آپ اگر رکھے رہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر نبی نے مدینے نہیں بھی بلایا، آپ دنیا سے چلے گئے، تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے آقا خود اپنا جلوہ دکھانے کے لیے. سبحان اللہ. میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کر لیں. مجھے بھی نبی کا نقش کفے پا بنا دیا ہوتا، نبی کے شہر میں نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، جو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا، جو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا. اس شعر میں اس کلام کا سب سے اچھا شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے اور اچھے سامعین کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ کر لیں، آپ بہت اچھا سنتے ہیں. میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کر لیں. میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، ادھیڑ کر میری چمڑی کو خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی کو خالق اکبر، نبی کے پیر کا جوتا بنا دیا ہوتا،
पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स बहुत करीब से गुजरा है हमारे और आपके दरमियान से, और हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका गुण गाते हैं, और गाना भी चाहिए, जिनका खाते हैं उनका गुण गाते हैं। और मेरे नबी ने बड़ी मोहब्बत की है हम जैसे गुनहगारों से, और मुल्क हिंदुस्तान से आका बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत ना करते तो आका ने पूरी दुनिया में, न तो मुल्क शाम में, न तो ईरान में, न इराक में, कहीं भी अपना नुमाइंदा बनाकर नहीं भेजा कि जाओ मेरे दीन को फैलाओ। अगर भेजा है तो मुल्क हिंदुस्तान में भेजा है ना। तो ये मोहब्बत की बात है। आदमी वहीं किसी को भेजता है जहाँ मोहब्बत करता है कि जाओ तुम उसकी भलाई करो। तो आका हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं उससे कबल एक मतलब 2-3 शेर हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पढ़ता हूँ, मुरादा कर लें। सारे दीवाने बैठे हैं, बिल्कुल दीवानगी का एक माहौल बने, समाप्त करें। होने लगती है मसरूर सांसें मेरी, होने लगती है मसरूर सांसें मेरी, होने लगती है मसरूर सांसें मेरी, जब महकते हैं अख्तर रज़ा ज़हरे, होने लगती है मसरूर सांसें मेरी, जब महकते हैं अख्तर रज़ा ज़हरे, होने लगती है मसरूर सांसें मेरी, होने लगती है मसरूर सांसें मेरी, जब महकते हैं अख्तर रज़ा ज़हरे, जब महकते हैं अख्तर रज़ा ज़हरे, नाज़ करते हैं हम अपनी तकदीर पर, नाज़ करते हैं हम अपने तकदीर पर, दिल में रहते हैं अख्तर रज़ा नाज़ करते हैं हम अपनी तकदीर पर, जब दिल में रहते हैं अख्तर रज़ा ज़हरी। और हकीकत के आईने में जो उनके दीवाने हैं सुन भी लिया करते थे, हम लोग सुन लेते थे कि इलाहाबाद या बनारस में हुजूर ताजुश शरिया आने वाले हैं, है ना। तो हुजूर ताजुश शरिया तो आते थे 12-1 बजे की रात में, दीवाने दोपहर 12 बजे जाके बैठ जाया करते थे, है ना। ये हकीकत है। अब सुने एक शेर। होने लगती है मसरूर सांसें मेरी, जब महकते हैं अख्तर रज़ा ज़हरे, देख कर दुश्मन दीन हैरान है, देख कर दुश्मन दीन हैरान है, सारे नजदी वहाँ पे परेशान है, देख कर दुश्मन दीन हैरान है, देख कर दुश्मन दीन हैरान है, सारे नजदी वहाँ पे परेशान है, सारे नजदी वहाँ पे परेशान है, पीछे पीछे हाँ पीछे पीछे है लाखों गुलामे रज़ा, पीछे पीछे है लाखों गुलामे रज़ा, जब निकलते हैं अख्तर रज़ा ज़हरे, पीछे पीछे नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, झगड़ा का मोहल्ला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे पीछे है लाखों गुलामे रज़ा, जब निकलते हैं
जो महीना चल रहा है बड़ा मोतबर महीना है, ये रजब का महीना। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में एक रात ऐसी रखी है जिसे सबे मिराज कहा जाता है। जानते हैं वो मुलाकात की रात है। उस रात की अजमत क्या होगी, आप सोचें कि जिस रात अल्लाह अपने महबूब से मुलाकात कर ले। अल्लाह खुद भेजता है जिब्रील को, जाओ मेरे महबूब से कह दो कि महबूब अल्लाह आपका मुश्ताक है, आपको देखना चाहता है। अच्छा जिब्रील भी आए, पूरा वाक़या तो आप बखूबी जानते हैं। जिब्रील आए, खड़े रहे, जरूरत नहीं हुई कि जगा दे नबी को, नबी आराम कर रहे। वापस गए, रब ने कहा तुम्हारे होठों में जो काफूर रखा है इसी दिन के लिए रखा है, जाओ मुस्तफ़ा के तलवे पे अपने होठों को बंद करो, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। अच्छा लेके चले गए। जानते हैं मामला, देखिए एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे नबी ने कहा था, जिब्रील तुम जब भी आते हो ना तो एक सहाबी रसूल की शक्ल में आते हो। दहिया कभी एक सहाबी हैं उनकी शक्ल में आते थे। तो मुस्तफ़ा कहते हैं जिब्रील तुम अपनी असली सूरत मुझे दिखा दो, मैं तुम्हारा भी नबी हूँ, अपनी जो असली सूरत है दिखा दो, तुम सहाबी की शक्ल में आते हो। तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह, जिब्रील को देखने के लिए जिब्रील को आप दुनिया में नहीं देख सकते, जिब्रील की असली सूरत दुनिया में नहीं देख सकते। जिब्रील को देखना है ना तो सिदरा पे चलना पड़ेगा, सिदरा पे चलना पड़ेगा। अच्छा वो घड़ी आ गई जब मुस्तफ़ा सिदरा पे पहुंच गए ना, जब पहुंचे ना तो कहते हैं ए जिब्रील खुद कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने दुनिया में एक मरतबा कहा था कि अपनी असली सूरत दिखा दो। या रसूल अल्लाह दिखा दूं, मेरी असली औकात क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील कोई ज़रूरत नहीं देखना चाहता हूँ, नहीं देखूँगा। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह देख लीजिए, मेरी तमन्ना है कि आप देख लें। अच्छा जिब्रील ने अपना पर खोल दिया, सारे परों को खोल दिया। जब नबी ने देख लिया, नबी जब आगे बढ़ने लगे तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने जिब्रील को तो देख लिया, अपनी भी असली सूरत दिखा दीजिए, आप भी दिखा दीजिए। अच्छा जिब्रील ने क्या कहा था कि जिब्रील को देखने के लिए सिदरा पे जाना पड़ेगा। नबी कहते हैं जिब्रील मोहम्मद को देखना इतना आसान नहीं है, मोहम्मद को देखने के लिए लामका तक जाना पड़ेगा। अब जिब्रील कहते हैं यार रसूल अल्लाह बाल के बराबर भी आगे जाऊंगा ना तो मेरे पर जल जाएगा, नहीं जा सकता। तो आका कहते हैं जब तुम आगे नहीं जा सकते तो मोहम्मद की हकीकत को भी नहीं देख सकते। ये मिराज की रात है, बड़ी प्यारी रात है, जिस रात में अल्लाह और उसके महबूब की मुलाकात की रात है। ये वही महीना है रजब का। मैं इसमें ख्वाजा पिया का उर्स गुजरा है तो 3 शेर मैं पढ़ता हूँ, मुरादा कर ले। मेरा ख्वाजा है महाराजा, बोले मेरा ख्वाजा है महाराजा, मेरा ख्वाजा है महाराजा, मेरा ख्वाजा है महाराजा, मेरा ख्वाजा है महाराजा। भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, कि भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा। मर जाएगा ईमान का सौदा न करेगा, मेरा ख्वाजा है महाराजा, मेरा ख्वाजा है महाराजा, मेरा ख्वाजा है महाराजा, मेरा ख्वाजा है महाराजा। अब मेरे ख्वाजा पिया कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी शान है। पूरी दुनिया हैरान है, सब कुछ कर सकती है, इंसान जैसा सब कुछ बना सकती है, हाथ बना सकती है, पैर बना सकती है, लेकिन इसके अंदर रूह नहीं फूंक सकती। जानते हैं ख्वाजा पिया का एक मुरीद, एक दीवाना था जो गैर मुस्लिम था, आया एक दिन ख्वाजा की बारगाह में, कहता है हुजूर मैं
आपको देख के दिल तो करता है कि मजहब इस्लाम कबूल कर लूँ, लेकिन सोच ये रहती है। तो ख्वाजा ने कहा अच्छा अगर होना ही चाहते हो तो हो जाओ, कलमा पढ़ लो। उसने कहा ख्वाजा पिया कलमा तो पढ़ लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मानेंगे? जानते हैं दीवानों की जब किसी वली की बारगाह में जाया जाता है ना, तो दिल को बड़ा संभाल कर जाया जाता है। वो दिल की कैफियत को जानता है कि इसको कौन सा खुराक देना है कि ये सुधर जाएगा। जैसे गौसे आजम की बारगाह में आया था, आपने सुना होगा, आया था वो चोर, तो सरकार मुरीद कर लीजिए। सरकार कहते हैं नहीं मुरीद करूँगा, तो चोर है, कहता है हुजूर मुरीद कर लीजिए। कहा अच्छा, उसने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए, मेरी दो शर्त है, मान लीजिए मुरीद कर लीजिए। सरकार ने कहा अच्छा शर्त बता। कहता हुजूर चोर हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, मना मत करिएगा। कहा दूसरी, कहा हुजूर नमाज के लिए भी मत कहिएगा, आप कहेंगे लेकिन मत कहिएगा। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तेरी दोनों शर्त जो है शरीयत के खिलाफ है, कोई मानने वाली चीज नहीं है। और तू किसकी बारगाह में आया तुझे मालूम है? यहाँ बड़े बड़े औलिया आने के लिए उनकी रूह कांप जाया करती है, तू गौस की बारगाह में बैठा है और ये शर्त लेके बैठा। कहता हुजूर मुरीद तो आपसे ही हुआ, बगैर मुरीद हुए जाऊंगा नहीं, जब तक करेंगे नहीं वापस नहीं जाऊंगा। सरकार गौसे आजम ने कहा कि नहीं, मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता, तेरी दोनों शर्त के खिलाफ है। तो उसने कहा कि हुजूर आपने तो बड़े बड़े डाकुओं को सुधार रखा है, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, मुझे सुधारने में कितना वक्त लगेगा। सरकार कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरी दो शर्त मानूंगा, तू मेरी एक मानेगा? उसने कहा सरकार आप मेरी दो मान लेना, मैं आपकी 1000 मानूंगा, 1000 मानूंगा। सरकार ने कहा नहीं 1000 नहीं, सिर्फ एक माननी है, मानेगा? कहता है कि हुजूर मैं तो कह रहा हूँ आप मेरी सिर्फ 2 मान लें, चोरी के लिए मत रोकें, नमाज के लिए मत कहिए हुजूर, बाकी आप जितनी शर्त लगा दे मान लूंगा। सरकार गौसे आजम बस एक मान, एक। कहा सरकार ठीक है। सरकार गौसे आजम ने कहा मेरी शर्त ये है कि नमाज के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए ना, जहाँ भी रहना वही अजान दे देना, जहाँ रहना वही अजान दे देना। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार करने। वो जानते हैं कि इसको कौन सा खुराक देना है कि ये सही हो जाए, जानते हैं। अच्छा उसने शर्त मान ली, कहा ठीक है अजान दे दूंगा। मुरीद हुआ, आया घर, फजर की अजान दिया, सुबह की अजान दिया, असर की अजान दिया, मगरिब की अजान दिया। बीवी देखते देखते थक गई, कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जब से आए हो ले दे के अजान के पीछे पड़ गए हो, सुबह अजान, दोपहर अजान, 4 बजे अजान, 5 बजे अजान, अरे नमाज पढ़ने भी जाओगे या सिर्फ मेरा ही सिर खाते रहोगे? सिर्फ अजान पे अजान, नमाज नहीं। कहा तुम्हें नहीं मालूम है, मैं सरकार गौसे आजम से वादा करके आया हूँ कि अजान दूंगा। कहा अच्छा घर में कुछ नहीं है, जाओ कमा के लाओ, कहीं से लाओ इंतजाम करके। ये निकला एक बड़े ताजिर के घर में। जब घर में घुस गया ना, किसी तरीके से उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ तमाम साजो सामान रखे। जब घुसा सब कुछ इकट्ठा करने में कितना वक्त लगा। अच्छा चोर की फितरत होती है, एक चीज उठा लेगा, दूसरा उससे अच्छी लगेगी, ये उठाया सोचेगा इससे अच्छी वो भी उठा लो। करते करते सारे सामान को भरता भरता वक्त पे निगाह नहीं गई। और जाते भी कैसे, सरकार गौसे आजम ने यही तरीका ही चुना था उसे सुधारने के लिए। कैसे निगाह जाए, वक्त हो गया। अब जब देखा ना, अच्छा और कोई होता तो भाग जाता, और कोई होता तो भाग जाता, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह के वली अपनी मोहब्बत डाल दे, वो भागना भी चाहे तो उसके पैर रुक जाया करते हैं। और कोई होता तो भाग जाता कि चलो बाहर जाके अजान दे दूंगा। बाहर जाने में कितना वक्त लगता, 2 मिनट लगता, 1 मिनट लगता, बाहर जाके अजान दे दूंगा। लेकिन वो रुक गया, क्यों? उसके दिल में गौसे आजम ने अल्लाह का खौफ पैदा करवा दिया था। वलियों से निस्बत रखने का यही फायदा होता है कि वो हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा फरमा दिया करते हैं। अब वो नहीं मिला, वहीं खड़ा हुआ, वहीं अजान दे दिया। अब अजान देना था, घर के सारे संतरी मंत्री उठ गए। जब उठ गए तो कोई वजू बना रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। अब ये खड़ा हुआ, जब देखा कि दाएं बाएं देखा कि सब लोग उठ गए, तो उसने 2 रकात की नियत बांधी। नियत ये बांधी, पहली बार नमाज पढ़ रहा है, पहली बार नमाज पढ़ रहा है। अब नियत बांध ली, जब 2 रकात पढ़ लिया तो पीछे सारे लोग आ गए। कहा कि हुजूर अजान तो दे दिया है, नमाज भी पढ़ा दीजिए।
नमाज भी पढ़ा दीजिए। उसने कहा मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था। कहा कि हुजूर क्या कोई चोर किसी के घर में जाके अजान देता है? कोई घर में जाके अजान देता है? हुजूर आप चाहे लाख कहे कि मैं चोर हूँ, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कहा देखो ये तुम्हारा सामान है, सारा सामान तुम्हारे सामने मौजूद है, मैं मुजरिम हूँ, इकरार भी कर रहा हूँ कि मैं चोर हूँ। कहा हुजूर हो सकता है कि हमारे घर पे कोई मुसीबत आने वाली हो, आपने हमारे सामान की हिफाजत फरमाई है, हो सकता है, लेकिन हम आपको चोर नहीं कह सकते। वो सोचता है चोर कि जब पहले पकड़ा जाता था बगैर सामान के भी पकड़ा जाता था, फिर भी लोग हमें मार दिया करते थे, फिर भी पिटाई हो ही जाया करती थी, लेकिन आज रंगे हाथ पकड़ा गया हूं, फिर भी लोग मुझे चोर करने के लिए तैयार नहीं हैं। समझ गया। कहा कि आज पहली बार रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया है, तो अल्लाह ने ये जो चोर का जो ये इल्जाम लगा था, अल्लाह ने इस चोर का नाम मिटा दिया मेरे से। अच्छा जब ये अजान दिया ना, तो सरकारी गौसे आजम अपने मदरसे में बैठे हुए थे। ये जब अजान शुरू किया तो उधर सरकारी गौसे आजम फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि फंस गया, फंस गया। मुरीदों ने कहा हुजूर कौन फंस गया? कहा वो मैं उसकी दो मान के नहीं फंसा, वो मेरी एक मान के फंस गया, एक मान के फंस गया, वो चोर फंस गया। देखो अब क्या कहता है। उसने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा की कि अल्लाह ने उसे भी गौसे आजम के सदके विलायत अता फरमा दी। ये देखिए वलियों से निस्बत रखने का फायदा ये है, वलियों की मोहब्बत अगर दिल में है, दुनिया का कोई भी शैतान आपको बहका नहीं सकता, कोई नहीं बहका सकता। ये वलियों की मोहब्बत अगर आपके दिल में है। सरकार गौसे आजम ने तो बड़े बड़ों को सुधार रखा है, ऐसे ऐसों को सुधारा है ना कि जो सुधरने वाले नहीं थे, ऐसे ऐसों को सुधारा है। एक चोर आया था, आया घर में ढूंढा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, इतने में उसे आहट लगा कि कोई घर में उठ गया है। चोर निकल के भागने लगा खाली हाथ। सरकार गौसे आजम ने कहा कौन है? कहा चोर। हुजूर कहा पकड़ो पकड़ो उसको। जब पकड़ के लाया गया ना, कहा कहाँ आए थे? कहा हुजूर चोरी करने के लिए। कहा कुछ मिला? कहा नहीं मिला। कहा तो गौसे आजम के घर से खाली लौटेगा? गौसे आजम के घर से खाली लौट रहा है। अरे जमाना क्या कहेगा कि ये मोहम्मद का दरबार है और अब्दुल कादिर के घर से एक चोर खाली लौट गया। गौसे आजम फरमाते मेरे दर से कोई खाली नहीं लौटेगा। जमाना तो कहेगा कि लौटा तो है, चाहे वो चोर हो, लेकिन गौसे आजम के दरबार से खाली लौट गया है। मैं तुझे विलायत का ताज अता फरमा दूंगा। ऐसे ऐसों को नवाजा है मेरे सरकार गौसे आजम ने। जानते तो वो गैर मुस्लिम जब आया ना ख्वाजा की बारगाह में, तो ख्वाजा पिया ने कहा कि अच्छा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाए। कहा सरकार मेरी शर्त है। कहा क्या? कहा मैं नमाज भी पढ़ूंगा और उधर भी जाऊंगा, दोनों काम करूंगा, आप मत रोकिएगा। तो कहा अच्छा ठीक है, चलो कलमा पढ़ो, मुसलमान हो गया। अच्छा इधर भी जाता उधर भी जाता। एक दिन सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे मुरीद यहाँ आओ, बैठो, तुम बड़ी मोहब्बत करते हो उधर, बगैर उधर जाए रह नहीं सकते। कहा अच्छा जाते कहो। कहा कि वहाँ हम लोगों ने एक मूर्ति बना रखी है। कहा वो एक लेडीज की मूर्ति है। कहा अच्छा कहा वहाँ क्या करते हो? कहा जाता हूँ। कहा अच्छा आपकी बार जब जाना ना तो कह देना चलो तुम्हें ख्वाजा पिया ने बुलाया है। अच्छा बुला लिया। अब जिसके बुलाए पे पूरा आना सागर चला है, जिसके बुलाने पे पूरा आना सागर चला है। अच्छा ये मुरीद गया अपना सारा काम किया, करने के बाद सोचता है कि कहूँ कि ना कहूँ, आखिर कहूँगा तो ये सुनेगी भी नहीं, चलो अच्छा ट्राई कर लेता हूँ। ये उन्हीं के नवासे हैं, उन्हीं के नस्ल से है। जैसे नबी की बारगाह में एक यहूदी आया था, कहता है मोहम्मद अगर आप सच्चे नबी हैं ना तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, ये खजूर जो दिख रहा है ना, ये खजूर का जो गुच्छा दिख रहा है, इसको आप बुला लीजिए, इसको बुला लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अच्छा नबी ने इशारा किया, वो खजूर से वही गुच्छा टूटा और घिसटता हुआ मुस्तफा की बारगाह में आ गया। आया यहूदी तो कलमा पढ़ लिया। अच्छा नबी चाहते ना तो उस खजूर को सहाबा में बांट देते, सहाबा भी मस्त हो जाते कि नबी ने मोजज़े के तौर पे तोड़ा था उसको, उस खजूर को हमने खाया है। लेकिन नबी ने जानते हो खजूर से क्या कहा है खजूर ऐसा करो तुम वापस जाओ, जहां से आए तुम वहीं लग जाओ। वहीं चला गया वो खजूर, फिर जाके लग गया। साहबा ने पूछ लिया या रसूलल्लाह वो हमें दे सकते थे?
ہم کھا سکتے تھے، آپ بھی تناول فرما سکتے تھے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، کل زمانہ یہ کہے گا کہ وہ کھجور جو ٹوٹا تھا نا، مصطفیٰ نے نہیں توڑا تھا، بلکہ ہوا کا جھونکا چلا ہوگا گر کے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا آیا ہوگا۔ یہ ہوا کے سہارے سے ٹوٹا تھا۔ میں نے واپس جوڑ کے زمانے کا منہ بند کر دیا کہ جو مصطفیٰ، جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ توڑنا جانتا ہے تو وہ دوڑنا بھی جانتا ہے۔ تو خواجہ پیا نے کیا کہا؟ جاؤ کہہ دو اسے بلایا ہے۔ خواجہ نے بلایا، اچھا یہ پہنچا، پہنچنے کے بعد سوچ میں پڑا ہے، لیکن پھر کہہ دیتا ہے، کہا چلو تجھے میرے پیر نے بلایا ہے۔ وہ پتھر کی ہے، آگے ہلی، دائیں ہلی، بائیں ہلی، ہلنے کے بعد وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے پتھر پر۔ لیکن خواجہ نے دیکھیں، اللہ نے حضرت خواجہ کو مقام کیا عطا فرما دیا۔ ایسے ہی نہیں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا، ایسے نہیں اتنے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ کے ہاتھوں سے۔ یہ خواجہ کا مقام ہے۔ اچھا وہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، دونوں جب خواجہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے نا، تو خواجہ نے کہا یہ بتاؤ لے کے آئے؟ کہا ہاں حضور۔ وہ آ گئی، کہا کہاں ہے؟ کہا وہ اندر آ۔ اس کو بلایا، جب وہ اندر آ گئے نا تو حضرت خواجہ غریب نواز اس مرید سے کہتے ہیں، کہا یہ بتا تو اس کے بغیر رہ نہیں پاتا، بغیر جائے تو اس مانتا نہیں، کیا اس سے بڑی محبت ہے؟ کہا کہ حضور بڑی محبت کرتا ہوں، یہ صدیوں سے محبت چل رہی۔ تو حضرت خواجہ پیا کہتے ہیں کیا اس سے نکاح کرو گے؟ اس سے نکاح کرو گے؟ وہ کہتا ہے حضور پتھر سے نکاح کرنے سے کیا فائدہ، پتھر سے نکاح کرنے سے کیا فائدہ؟ میرے خواجہ فرماتے ہیں ذرا اس کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھ۔ جیسے گھونگھٹ اٹھایا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت کھڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خواجہ کی شان ہے کہ ایک پتھر کے اندر جان پھونک دے، ایک پتھر کے اندر جان پھونک دے۔ اور زندگی اگر دینے پہ آئے تو جوگی جے پال کو عبداللہ بیابانی بنا کر صبح قیامت تک زندہ رکھ سکتے ہیں حضرت خواجہ۔ ہم اس کے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے گا تو وہ تاریخ یاد آتی تھی جب خواجہ پیا نے اونٹوں کو بیٹھا دیا تھا، زمانے نے کہا کہ بھگا دوں گا، مسلمانوں نے کہا جب میرے خواجہ کے بس بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہ اٹھا سکے تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیا بھگاؤ گے؟ یہ میرے خواجہ کی شان ہے، اس خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں۔